Viewers, good evening. A very serious game of political chess has been going on before these critical elections that will play out over the next few days. There are parties and alliances with serious and visible contradictions that are attempting to paper over the cracks and put up a coherent front. In Maharashtra, the MBA has received a big offer of support. The All India Ulema Board has made a list of 17 demands. These include Muslim quota, opposition to the Modi government's Waqf reforms, a 1,000 crore donation to the Maharashtra Waqf Board, doles for imams and much more. It's a list of demands that far outstrips what SP's Rais Sheikh asked of the MBA a few days ago. Many would say it even goes beyond what the AIMIM has been talking about. But the Congress, it appears, is very, very tempted, and perhaps because of this offer, many in the opposition, viewers, are going on an overdrive to appease their vote bank. This is why perhaps the Sanatan slander has hit crescendo, and this is not limited to Maharashtra. For instance, in Uttar Pradesh, where there are important by-polls to be held, the Congress appears to have no qualms. Its ally, the Samajwadi Party, has been partaking in the abuse of Sanatan Dharma for several months now, but the round of politics has taken matters to a whole new level. After claiming it will send bulldozers to prominent mutts and Hindu temples if it comes to power, Akhilesh Yadav's party has now questioned the Mahakumbh, which will be held next year. Viewers, the Mahakumbh, which is always among the largest gatherings in history, is often called one of the wonders of the spiritual world. It is something that intrigues and fascinates people from everywhere and is so mind-bogglingly large that the number of daily attendees exceed entire populations of many countries. But as per the Samajwadi Party, this jewel in India's crown is nothing more than a scam. Yes, that's the word they've used. They say that the government has allotted too much money for the Mahakumbh and the funds of farmers and taxpayers have been swindled. What's more, the Congress says there may be substance in these allegations and must be probed. Now, viewers, if this was not enough, the Congress president, Mr. Khadge himself, has openly insulted sadhus who wear gerua, who wear saffron clothes, and has accused them of spreading hate. Is this, viewers, no more than a naked attempt at Hindu bashing for a few votes? मैंने शुरू में ही इसका विरोध किया था। मैं समझता हूं कि उसमें इसका 50% पैसा जो है नाजायज रूप से जो है खर्च दिखाया जा सकता है। भारी भरकम पैसा जो है गरीबों का, किसानों का जो खून पसीने का पैसा टैक्स का है जो है वो उसमें जो है लगाया जा रहा है और सरकार उसको कम पैसे में भी जो है वो कार्य को पूरा कर सकती थी। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? यही समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी सोच है। महाकुंभ के लिए पैसे अगर आवंटित किए जाते हैं ताकि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से चले, तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार नजर आ जाता है। परंतु सैफई में जहां पर नाच गाने पर, बॉलीवुड पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, जनता की गाड़ी कमाई खर्च की गई, वो तो खर्च बहुत सही खर्च किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है वही राहुल गांधी की सोच है। इनको चिढ़ सनातन से है, इनको चिढ़ भगवा से है। तभी इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की सोच यही है कि ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स समझते हैं। You heard the reactions. Let's quickly open this up. Pradeep Bhandari, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party.
IP Singh, national spokesperson of the Samajwadi Party, Sanjay Gupta, leader of the Shiv Sena Uddhav faction, Kamruzaman Chaudhary ji, political analyst, and advocate Tala Rashidi completes the panel, is the spokesperson of the Rashtriya Ulema Council. Sanjay Gupta, is the Mahakumbh a scam? क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? महाकुंभ को स्कैम बोल दिया, बोला करप्शन है. तो हमारा क्या ताल्लुक है उससे? हमने थोड़ी बोला है ना, हमारा महाराष्ट्र में इनके साथ कोई गठबंधन है. मतलब ये बोला सपा के नेताओं ने है, हमने थोड़ी बोला है कुछ महाकुंभ के विषय में. महाकुंभ को जिस तरह से मना रहे हैं योगी जी, हम उसका समर्थन करते हैं. महाकुंभ अच्छे से भव्य रूप से बनना चाहिए. समाजवादी उसका विरोध करती है, कांग्रेस विरोध करती है, कोई और गठबंधन का साथी विरोध करता है. ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये उनका अपना नजरिया है, हमारा नजरिया तो नहीं है. नहीं, ये बोल के आप बच नहीं सकते संजय जी. आप नजरिए की बात हर हफ्ते वहां हनुमान मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, और यहां जब आपसे पूछा जाता है कि आप स्टैंड लीजिए तो आप बोलते हैं कि देखिए गठबंधन में नहीं है, यहां नहीं है, वहां नहीं है. ये जब सनातन को गाली देते हैं तब आप बोलते हैं कि हमने तो नहीं कहा. तो हमारे ऐसे थोड़ी होता साथी नहीं है. आप कहिए, आपका आईपी सिंह है, कमरुजमान चौधरी है, उनसे कहिए कि माफी मांगे, उनको बताइए महाकुंभ क्या है. देखिए, हमने तो वीर सावरकर जी के विषय में कांग्रेस को बताया कि वीर सावरकर जी क्या है. आज कांग्रेस की रैलियों में सावरकर जी के गीत बजते हैं. और ठीक इसी तरह से महाकुंभ का मैं तो अपने सभी साथियों से कहूंगा कि ये किस तरह के आरोप प्रत्यारोप, वो आरोप प्रत्यारोप किसी ऐसे महाकुंभ पे थोड़ी ना होने चाहिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की जा रही है. हम इसका समर्थन नहीं करते. ना हमने पहले कभी किया, ना आज करेंगे, ना आगे कभी करेंगे. आप तो हम नहीं करते. अब देखिए आपके सामने अब क्या होगा. अब मैं कमरुजमान चौधरी से शुरू करता हूं. कमरुजमान चौधरी, इज महाकुंभ अ स्कैम? Pranesh, have you seen that movie? Oh my God, a wonderful depiction of how आस्था से लेकर किस तरह से राजनीति किया जाता है, या लोगों का आस्था का गलत उपयोग करके कुछ 2-4 वोटों को बटोरने का कोशिश होता है. यहाँ पे कोई महाकुंभ जैसा मेला को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, ना तो कोई इस पे सवाल उठा रहा है. जो 2021 में जो जमीन घोटाला हुआ था राम मंदिर का जमीन अधिग्रहण का टाइम में, उस टाइम में भी सवाल उठाया था, लेकिन ना तो भाजपा, ना तो आरएसएस, और ना ही जो मंदिर के ट्रस्ट है वो अभी तक कोई टिप्पणी या सफाई दे सका. कमरुजमान चौधरी, इसमें क्या हुआ? टॉकिंग ऑफ जमीन घोटाला, व्हेन इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन वक्फ रिफॉर्म, which is, daylight robbery of land in the name of religion, you will not say a word. But look how easy it is for you to equate Mahakumbh with land scam. Samajwadi Party colleagues have called it an open scam. Leaders of the Congress in Uttar Pradesh have said, yes, there must be probe. Are you so tempted by the offer of the ulemas in Maharashtra Pranesh, that you will, cross all lines of appeasement? हेलो, आवाज थोड़ी सी लाउड रखिएगा. आवाज. Pranesh, you may be opinionated, judgmental, but I am not. Don't try to put words in my mouth. I am not. I am only asking you a question. That has been going on for thousands of years. So answer my question that I am asking you. Is it relevant to the debate or not? Of course it is. Then you can. Of course it is. How dare someone call Mahakumbh a scam? Please listen to me. There are examples of arms being found in a madrasa. It is a scam. Will the leaders of India Alliance call the madrasa illegal? I dare you. Will you call the madrasa illegal where arms were found? Will you say that madrasas are used for illegal activity? Pranesh, that is the problem with you guys. When we discuss about the Mahakumbh or the Ram Mandir, you come in comparative comparison with the madrasas, with Why the shouldn't Muslims, we? with the ulema. Why shouldn't we? Are you, तुम्हारा आस्था के इतना कमजोर है? This is not about, look, Kamruzaman Chaudhary, this is not about Pranesh. This is about millions of devotees. Why are you doing this? First, leaders of India Alliance compared Sanatan to HIV and leprosy. Now this religious gathering is dubbed a scam. Let me ask IP Singh ji. 1 minute, Kamruzaman Chaudhary, I have tried twice. If you don't want to an answer, if you don't have an answer, what can I do? I have not yet finished. Pranesh, I have not yet finished. Give me 30 more seconds. I will not speak in your debate. Take 1 minute, but answer the question. If you permit me. Just let the viewers understand
4,200 crores have been spent in 2019 Kumbh Mela by the Uttar Pradesh government. Out of which, what is the justification of spending 500 crores on advertisement? What was the advertisement all about? 250 crores have been spent on making sanitation and toilets. Where was the amount going? The question that was raised was justified, whether the toilets that have been procured, whether the advertisement that have been spent, or whether the healthcare that has been spent on, or the temporary infrastructure that was built, was it justified? Was there any tender called for it? Or did it go to building the BJP's party offices across the country? That was the question that we are asking. And why are you so tilmila? Kumbh Mela is going on even before the BJP, RSS and Jan Sangh were born in this country. Don't try to belittle the Kumbh Mela and Aastha of millions. Do not, For your Kamruzaman political Chaudhary, destiny. 1 minute. And First please, of all, for this God's bluff sake, and bluster is not don't working with me. link the scam People can funding. see through. Mr. Chaudhary, I asked you a simple question. What was the question? I first went to Sanjay Gupta. Sanjay Gupta at least has some stand. He says, look, this is wrong. People should not do this kind of commentary. But you have revealed your true colors. Let's go to IP Singh ji. IP Singh ji, आप बताइए सवाल क्या है? ये जो मजाक कर रहे हैं आप धर्म के नाम पे महाकुंभ को गाली देने का, स्कैम बता रहे हैं, घोटाला बोल रहे हैं, ये सही बात है क्या? अब आप कोई क्लिप मत चलाइएगा मोबाइल पे, आप जवाब आप दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं चला रहा हूं, लेकिन झूठ बोलना बंद करिए। मीडिया से झूठ फ्रॉड करती है। पिछला महाकुंभ का आयोजन समाजवादी पार्टी ने कराई थी और आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे। ये व्यवस्था देखिए कि अमेरिका के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लोग उस महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ये रिपोर्ट एक बार आपको उठा के देखनी चाहिए। ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन। आईपी सिंह जी देखिए, मैं था वहां पे, मौजूद था, मैंने देखी थी व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। आईपी सिंह जी देखिए, व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। डिबेट पे 6 लोग आते हैं, अगर किसी का ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि व्यवस्था में कमी है? ये सब होते रहता है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या आप घोटाला कह रहे हैं? संजय गुप्ता ने कह दिया जी कोई घोटाला नहीं है, ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अब सुन लीजिए, जब भी कुंभ की तैयारी होती है, जिस दिन कुंभ खत्म होता है महाकुंभ, अगले महाकुंभ की तैयारी शुरू हो जाती है। 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में तो इसमें गलत योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दिक्कत क्या आपकी? 11वां वर्ष चल रहा, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। लखनऊ से लेकर भ्रष्टाचार है क्या? आरोप सही आना चाहिए। प्रयागराज तक 4 लेन बनना नहीं तैयार हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए लोन लेकर बनाया जा रहा, नहीं पूरा हुआ। बनारस से प्रयागराज नहीं तैयार हुआ। रेलवे स्टेशन का काम नहीं हुआ, रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई, एयरपोर्ट का विस्तार नहीं किया गया। ये क्या लॉजिक है आईपी सिंह जी? पिछले 1 महीने से नहीं तो रोड अगर तैयार नहीं हुआ तो ये स्कैम हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आईपी सिंह जी, एक छोटा सा सवाल। देखिए, एक छोटा सा सवाल प्लीज। देखिए, आप सुनिए, एक छोटा सा सवाल पूछने दीजिए। आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि ये तैयार नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए स्कैम है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आईपी सिंह जी, सुनिए, लिसन टू मी सर प्लीज। एक छोटा सा सवाल। आप कह रहे हैं कि देखिए लॉजिक ये है कि ये सब प्रोमिसेस थे, ये हुआ नहीं, इसीलिए स्कैम है। अखिलेश यादव पिछला चुनाव हार गए, उससे पिछला हार गए, वो छोटे नेता हो गए क्या? हो गए? उन्होंने जो वादे किए थे वो क्या है? झूठे वादे हो गए? सवाल यही है। सवाल नहीं, सवाल वही है, सवाल मैं पूछूंगा। सवाल ये है कि जिस तरह से अयोध्या में लूट हुई, जिस तरह से बनारस में घाट के नाम पर लूट हुई, उसी तरह से आज कुंभ के नाम पर 50% कमीशन खोरी। अरे आईपी सिंह जी, जो सबसे बड़ी लूट हो रही है वक्फ के नाम पे, उस पे भी कुछ बोलिए। वक्फ के नाम पे भी कुछ बोलिए, 1-2 शब्द बोलिए। वक्फ के नाम पे जो जमीनों का लूट हो रहा है उस पे भी कुछ बोल दीजिए। कल को आपके घर आएंगे और बोलेंगे कि ये जमीन भी हमारी है, फिर आप उनको बोलते रहिएगा कि सवाल ये है, सवाल ये है, वो जमीन ले लेंगे।
आज तक तो जमीन किसी ने नहीं हड़प लिया। तो आज तक अभी आप मोदी जी आएंगे जब वो से केंद्र में आ गए, योगी जी उत्तर प्रदेश में आ गए, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुसलमान करके नहीं, वो देखेंगे तो हड़पेंगे। उनका वक्फ का बहुत सीधा है। वक्फ का आईपी सिंह जी मैं बोल देता हूँ, वक्फ का क्या है नारा मैं बताता हूँ आपको। वक्फ का नारा बता रहा हूँ, वो देखेंगे तो हड़पेंगे, उन्होंने देखा नहीं होगा। बस चलिए, let's quickly open this up. Pradeep, before I come to you, I want to go around the opposition members here. Advocate Tala Rashidi, what is this offer that you've made to the opposition? अब ये सनातन को गाली तो दे रहे थे, अब ये सनातन इंटॉलरेंस शुरू हो गई। अब वो बोल रहे हैं कुंभ स्कैम है। इज दिस बिकॉज ऑफ द ऑफर ऑफ द उलमा काउंसिल? Good evening, everyone. I mean, I'm pretty much confused कि what exactly are you trying to portray here? This is very disturbing and shocking that you being a neutral host of a prime time news debate, you are projecting yourself as a spokesperson of a particular party. Rather, I should name the party BJP. I mean, Pradeep Bhandari sitting as the spokesperson of BJP needs not to do anything because he is smiling. You are doing his job very well. आप मुझको ये बताइए कि आपने स्वीपिंग जनरलाइजेशन करते हुए कह दिया वक्त वाले आएंगे लूट के चले जाएंगे। आपको देश के संविधान और देश के कानून पे भरोसा है कि नहीं? वक्फ इज अ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट एंड upheld by the सुप्रीम कोर्ट। उसके बावजूद आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं नेशनल कि वक्त आएंगे आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। उसके बाद आप लेकर अपीजमेंट की लेट मी कंप्लीट 600 residents are the latest victims of the वक्फ tyranny। दीजिए मुझको, फिर रिपोर्ट एक बार में बोलिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए। आप मुझको आप हेडिंग चला रहे हैं, टाइटल चला रहे हैं नेकेड अपीजमेंट का। मुसलमान अगर रिजर्वेशन की बात करता है महाराष्ट्र में 5% की, जो हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील किया उसको, तो ये गैर संवैधानिक हो गया, अपीजमेंट हो गया। आप कुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए सरकार के धन के आप उसमें प्रयोग कीजिए, ये अपीजमेंट नहीं हुआ। आप उसमें कांवड़िया यात्रा में सरकार के प्रसाधन यूज करते हुए सरकार के टॉप के ऑफिसर उस पर फूल बरसाए, पुष्प वर्षा करें हेलीकॉप्टर से, ये अपीजमेंट नहीं हुआ। आप दशहरा में दिवाली में स्पेशल अरेंजमेंट्स कीजिए, बस चलाइए, ये अपीजमेंट नहीं हुआ। आप रक्षाबंधन पे स्पेशल बस चलाइए, अपीजमेंट नहीं हुआ। हम अगर जो संविधान कह रहा है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कर रही है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन कह रहा है, कुंडू रिपोर्ट कह रही है, देश के तमाम बड़ी बड़ी एजेंसीज कह रही है, आप हम पे तंज करते हो कि शिक्षा का स्तर मुसलमानों में सबसे कम है। वो अगर आरक्षण की बात करते हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट जिसे अपील कर रही है, तो आपको दिक्कत है। आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी के सहारे आपको सरकार चलानी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी मुसलमानों को 5% आरक्षण दे रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपकी सरकार उनकी बैसाखी पे चल रही है। पर आप उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जहां आप सत्ता चाहिए या सत्ता की आपको हवस है, आप वहां पर मुसलमानों का विरोध करोगे, आरक्षण का विरोध करोगे। ये जो हिपोक्रेसी है, मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मैं टाइम्स नाउ से भी पूछता हूं कि ये हिपोक्रेसी आप क्यों कर रहे हो? मैं जवाब दे देता हूं सर, व्हाई आई एम कॉलिंग इट नेकेड अपीजमेंट। अब ताला रशीदी सुनिएगा। You don't saying that Kumbh is a temptation being appeasement done by the BJP to I am answering you. I am answering the questions you asked me. Then Pradeep will respond to all the others. Now 1 minute. You were talking about, you began by 1 minute, sir. You began by talking about the Kawad Yatra. Do you know the state collects all the money from Hindu temples? And if some amount is used for the devotees, you have a problem. But the same ecosystem had thought that, Hajj subsidy is the ultimate example of welfare state. Then you had no problems. Hindu temples, Mr. Tala Rashidi, if you don't know, are under state control. The revenues go there. Subsidy is not there. Now it is not there. Is that your only defense, Kamru Zaman Chaudhary? I am talking about the larger principle. On that you will have nothing to say. Now Pradeep, answer the question. The Samajwadi Party says Mahakumbh is scam. The Congress says there should be a probe. You heard IP Singh, he says talk about the real issues. And now Tala Rashidi is saying that why are you opposing the legitimate demands of Muslims? Pranesh, with your liberty, I'll allow me to answer in Hindi because your panelists have spoken in Hindi and maybe they would understand facts in Hindi first. मैं बताता हूं स्कैम क्या है। 25 जून 2012 को जब आजम खान जी को इन्होंने बनाया था मंत्री, 600 करोड़ का इन्होंने महाकुंभ में स्कैम किया था।
जिसकी ऑर्डर मनमोहन सरकार ने करी थी और पीएमओ से ऑर्डर हुआ था, इन्होंने स्कैम किया था। तो इनको लगता है कि ये तुष्टीकरण वालों ने जो स्कैम किया है तो हर व्यक्ति स्कैम करेगा। पूछिए इनसे आप, जब आजम खान को इन्होंने महाकुंभ का मंत्री बनाया था, क्या मनमोहन सरकार ने स्कैम ऑर्डर नहीं किया था? 600 करोड़ की रेगुलरिटीज पाई गई थी। मैं बताता हूं स्कैम क्या होता है। जब सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 90,000 करोड़ का घोटाला समाजवादी पार्टी के शासन के अंदर हुआ था, यह है स्कैम। अब इनको दिक्कत इस बात से है कि महाकुंभ के अंदर 1.2 लाख करोड़ का बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को होगा। दिक्कत इस बात से कि 190 कंट्रीज से लोग आएंगे। दिक्कत इस बात से है कि दलित और सभी लोगों का वहां पे रोजगार बढ़ेगा। दिक्कत इस बात से कि इनको यह चिढ़ मच रही है कि स्टेट की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। जिस तरीके से पिछली बार स्टेट को सरप्लस हुआ था, उसके पहले सरप्लस हुआ था, चिढ़ इनको इस बात से। ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलाते हैं और 6 साल बाद माफी मांगते हैं। अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं गए, 100 सालों तक प्रभु श्री राम को उन्होंने टेंट में रखा, इसीलिए इनको चिढ़ है। Now I'll tell you the real reason why all of them are going all out on hating the Hindus, because of this exact letter which you showed. I will tell you their entire objective is to make and impose Islamic laws in this country. This is why religious-based reservation in jobs is unconstitutional. What Tala Rashidi was speaking about was educational, and even in that the High Court did not say that take away the reservation of the SCs and the OBCs and give it to the Muslims. They want to take away the reservation of the SCs and the OBCs. This is why they are doing only caste census in the Hindus. Have they spoken about the caste census in the Muslim community? Ask them. Do they support it? They will say no. This is And I will prove it. I will prove it. I will prove it. I will tell you what is their real agenda. So what are you objecting to, Kamru Zaman Tell me Chaudhary? one fact which I have not you quoted. cannot. No, if what you are you want to objecting? do, declare it. Can I come in? Yeah, please. Can I come in, Pranesh? He said, being a national party spokesperson, India is a secular country till it is withdrawn. He is dog whistling your viewers, saying that India is going to be an Islamic country. You अरे will देश make का it. प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का हर एक मुख्यमंत्री हिंदू है, you listen to me. जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू है, when you allow 80% लोग हिंदू है, और फिर भी ये आदमी पाकिस्तान बदतमीजी कर रहा है कि लोगों को भड़का रहा है, बोल रहे हैं कि पूरा देश मुसलमान करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हो आप? बात कर रहे हो, challenge you on time ऐसा मत कीजिए। Pradeep, what is that book in your hand? What is that? That is not an empty constitution. That is the real constitution of India, which they trampled during the emergency. I challenge Kamru to tell me which provision of the constitution says that अरे आप संविधान you have to have Muslims and give preference to Muslims. पावर में हो जब तक यही संविधान अरे सर, जब तक हमें Calm down, Pradeep, wait us down. Kamru Zaman Chaudhary, listen, calm down first of all. Look, answer the question he's asking you. Which part of what he said do you object to? Which part? I objected. Pranesh, just give me 30 seconds. Coolly, let me explain to your viewers. Allow me the rebuttal after that. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द प्रधानमंत्री इस देश का हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, हर एक मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू है, गवर्नर सब हिंदू है, 80% लोग इसमें हिंदू है, फिर भी डॉग विस्लिंग करेंगे ये आकर नेशनल चैलेंज कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, मुसलमान इस देश को कर रहे हैं, मुसलमान इस देश को ले लेंगे। No, so what do you want? What do you want? What do you want? Are you suggesting, one minute, are you saying, 1 minute, are you saying because the Prime Minister is Hindu, the Home Minister should be Muslim, the President should be Christian, is that what you're saying? I never said that. Then what is the problem? I never said that. Then why are you identifying them with the religion? I just... What is the dog whistle here? You have no answers on the Shariat. No, you have no problem with this Shariat lollipop. 1 minute, sir, 1 minute. Going to be an Islamic country. Islam. I challenge him to... He is asking you on the offer of the ulemas. Kamru Zaman Chaudhary is asking you on the offer of the ulemas. This country can never be a Hindu Rashtra, nor Who it wants can to be make a this a Islamic Hindu Rashtra? Till the Congress party Who is wants here, to remember, Mr. who wants Pradeep. to make this Hindu Rashtra? Answer on the Shariat question. Why haven't you condemned it? Do you know what Supriya Sule has said? On question of Muslim reservation, she says, yes, all of us are on board. What? Pranesh, allow me 30 seconds to button. No, wait, Pradesh. Just listen coolly about it.
This is nothing about the Muslim reservation or Hindu reservation. You made it about Muslim reservation. I am asking you a simple question. Are you so swayed by the offer of the ulemas that you have now resorted to objecting to the Mahakumbh? Is this what it has come down to? Sanjay Gupta, आप अपने साथियों को कुछ तो बोलिए. 30 seconds, Manish. Can I come in for 30 seconds? I'll let you come in. मैं यही बोलूंगा. संजय जी, नहीं ऐसे नहीं होगा. संजय जी देखिए, आपको मन से बोलना पड़ेगा. आप नाम लेके बोलिए. कमरुज़्ज़मान जी को बोलिए कि देखिए सनातन का अपमान गलत है. आईपी सिंह को बोलिए. जो देखिए, मैं अपने जो साथी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के और जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जो देश के हिंदुओं की आस्था से, विश्व के हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए होते हैं और वहां पर आरोप प्रत्यारोप सोच समझ के लगाने चाहिए. इस मामलात में, कुंभ वाले मामलात में आपकी तरफ से सुझाव आना चाहिए कोई सरकार को कि हमने जब किया था तो इस तरह से किया था, उसमें यह बेटर था और आज ये बेटर किया जा सकता है. ना कि आप अभी तैयारियां शुरू हुई है उससे पहले ही आपने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए. विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं होता कि आप सरकार की हर बात के खिलाफ ही बोलेंगे. अभी चल शुरू भी नहीं हुआ, मतलब आप बोले तो सोच समझ के. और कुछ मामला जो मैंने अभी कहा कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जो देश की भावनाओं को जोड़ करके देखे जाते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं. अगर अयोध्या में कुछ लोगों को नुकसान हुआ तो उसमें सरकार का, इसलिए उसका दृष्टिकोण यही था कि पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई थी. अखिलेश यादव जी ने एक शायरी की कि हजूरे वाला खामोश बैठे ऐसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई और जबकि सजाई हमने. तो उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि सर, हजूरे वाला आप विपक्ष की कुर्सी में बैठे ऐसी गम में, पीएम की कुर्सी लूट ले गया कोई और जबकि अयोध्या जीती तुमने. तो जनाब, भले अयोध्या आपने जीती, इस बात का घमंड मत कीजिए, लेकिन उसमें जिस तरह से, जिस आस्था को ध्यान में रख करके बीजेपी की सरकार ने काम किया, उसका समर्थन किया जाना चाहिए था. संजय गुप्ता, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि आपने मन बना लिया है बीजेपी के साथ आने का, पूरी तैयारी में आप. देखिए, हम बाला साहब को मानते हैं और बाला साहब ऐसा सही को सही और गलत को गलत कहते थे. ऐसा नहीं है कि हमारे साथी कुछ भी कहेंगे तो हम उनको समर्थन आप समर्थन मत कीजिए. मैं चाहता हूं, देखिए अभी आपने जो बात सही है वो सही है. संजय जी, जैसे आपने आईपी सिंह को कहा, वैसे आप कमरुज़्ज़मान चौधरी को बोलिए कि सावरकर कौन थे. उनको बोलिए सावरकर के बारे में 2 शब्द बोले. बिल्कुल सर, सावरकर जी के तो अब हमने जब राहुल गांधी जी को बोला तो उसके बाद राहुल गांधी जी उनके खिलाफ नहीं बोलते, और अब जो है राहुल गांधी जी की रैलियों में सावरकर जी का गीत गाया जाता है. आप देखिए, मैं सबको बोलता हूं ये बात. तो श्रीमती नहीं, वो तो ठीक है. राहुल गांधी तो बड़े नेता है. कमरुज़्ज़मान चौधरी जी को बोलिए. अभी कमरुज़्ज़मान चौधरी हैं, उनको बोलिए सावरकर के बारे में 2 शब्द बोले. पूछिए उनसे कौन थे सावरकर. सावरकर जी, देखिए सावरकर जी इतने, आपको नहीं बोलना है, उनसे पूछना है. संजय जी, आप उनसे पूछिए. आपको बताना नहीं, आप उनको पूछिए कौन थे. पूछिए सर, आप कौन. नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए कमरुज़्ज़मान जी, सावरकर कौन थे. अरे आप बोलो, आपका भी शो है सर, आपका भी शो. आप पूछिए उनसे कमरुज़्ज़मान जी, सावरकर कौन थे. मतलब मैं बोलूं या आप उनसे पूछ रहे हैं मेरे को. नहीं, मैं चाहता हूं आप ये बोलें कि कमरुज़्ज़मान जी, सावरकर कौन थे, बताइए. राहुल गांधी जी की मीटिंग में आजकल सावरकर जी के गीत गाए जा रहे हैं कि याद रखिएगा. और राहुल गांधी जी को हमने क्लियर तौर पे कह रहे थे कि सावरकर जी के खिलाफ बोला तो गठबंधन में नहीं रहेंगे. उसके बाद से अब तक कोई सावरकर जी के खिलाफ नहीं बोलता. कमरुज़्ज़मान जी, आप ये ध्यान रख लीजिएगा. आंसर द क्वेश्चन. हु वाज सावरकर? आई एम कमिंग टू दैट. नो, डोंट कम टू दैट. इजाजत चाहता हूं. आंसर दैट. बांटोगे भी तुम. Now I'm coming. Just 10 seconds. I have prepared a wonderful poem for you, for the people out here. हाँ. बांटोगे भी तुम, काटोगे भी तुम, मुल्क के दिल को जलाओगे भी तुम, नफरत के शोले भड़काते रहोगे, फिर उसी आग में पिघलोगे भी तुम. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का आत्मा बोल रही है. आज जिस तरह से इस गोडसेवादी लोगों ने आकर देश को जलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं, उस आग में खुद जलकर रहेंगे कभी ना कभी. ओके, मुझे एक बात बताइए. आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी लेकर देश जिस तरह से स्वाधीन हुआ. कमरुज़्ज़मान चौधरी जी, why are you not answering the question? 1 minute. दौर में जाना नहीं चाहते. Listen to me. कमरुज़्ज़मान जी, answer the question on Savarkar. Who was Savarkar?
Savarkar is, we call him a Veer Savarkar. He was a freedom fighter. But I do not believe in his ideology. That's very simple. You call him a Because freedom fighter, Veer prior Savarkar, Rahul going to Gandhi, Andaman, he was an Congress atheist. leaders call him After- Maafi Veer. They call him Maafi Veer. No. Wait. There is a lot of context. It's not a debate, one-liner debate on Pradeep, Savarkar. you know, you'll have Nor to give can it there to be them. one-liner Because debate of about Maharashtra context. elections, Kamru Zaman Chaudhary has at least revised his line. Pranesh, I asked Sanjay ji, he's very, very close to Sanjay Raut. He speaks to Sanjay Raut every day. And Sanjay Raut is very close to Uddhav Thackeray ji. If all of them have a consensus on Veer Savarkar and Bala Saheb Thackeray ji, I challenge them if Rahul Gandhi from his official Twitter handle or Congress party from its official Twitter handle can exactly say what Sanjay Gupta has been saying about Veer Savarkar ji. Allow me and I will challenge Kamru Zaman Chaudhary. This is Shama Mohammad's tweet and this is after Haryana elections on October 9, 2024. At the end of the day, only community which votes en masse for the Congress party, which the Congress party should take care of, is the Muslim community. I ask you, Pranesh, and I challenge, this is the constitution of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Which provision of the constitution says that religion-based reservation is constitutional? Religion-based reservation for the Muslim community in police forces happens in Pakistan and Islamic countries. This is where they want to take it towards Shariat, and I will prove it. All the places. Malappuram 68% Muslims, only these people win. Murshidabad 68% Muslims, they only win. Malegaon 90% Muslims, only they win. They want to ensure that the demography of this country disproportionately changes where they can impose this. If they were constitutional, they would have rejected the ulemas. They have not rejected the ulemas. And to this friend Tahir, he's changed the essential characteristic of the Waqf Act 1954 by making an amendment in 2013 by allowing the non-Muslims also, by allowing the Waqf to also take the properties of non-Muslims. So do not speak about constitution. Out there in the name of Muslims. Do you have the guts to say that on this national TV? Pradeep Bhandari, I challenge you here. Tell me what challenge. You have the guts say it on the national TV. What? That you clearly oppose the TDP government which is giving. Okay, I'll answer that. Listen to me. Reservation to Muslims in Andhra Pradesh. He's answering that question. अच्छा सुनो मैं आंसर कर रहा हूँ. Tala Rashidi ji, he is answering मैं वो भी that आंसर कर रहा हूँ. कीजिए सवाल उठाइए. अरे सुनो तो He is answering that, sir. आपने सवाल पूछा, अब सुन लीजिए. Chandrababu Naidu officially has said not a single reservation of the SCs, STs and OBCs will be given to the Muslim community. No additional reservation will be given to the Muslim community. Point number one. So go and read the statement. Point number one. Now tell me, religion-based reservation, is it happening in a constitutional country? How can Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's constitution allow that? Answer that. When has the Supreme Court upheld religion-based reservation? You are practicing what Jinnah did before independence. You are practicing what Jinnah did before independence. आप संविधान की बात करें. अरे संविधान की कौन सी धारा में लिखा है? संविधान, अच्छा मैं संविधान पे पूछता हूँ. ताला रशीदी जी, संविधान की बात करें, सोच लीजिए आप, अभी पूछूंगा सवाल आपसे. संविधान की बात करें, तैयार हैं आप? करेंगे. आप बताइए, आप आरएसएस के नेताओं मैं पूछता हूं आपसे, ताला रशीदी, संविधान की बात करें. नेशनल टीवी पे क्या आप आरएसएस? अरे बार नेशनल टीवी मैं सुनिए. को खत्म करेंगे. ताला रशीदी, लिसन टू मी सर, प्लीज लेट्स बी रीजनेबल प्लीज. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान पे पूछूं एक सवाल? आप बोलेंगे तो पूछूंगा. सर प्लीज आंसर मी, देन आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. अच्छा पहले आप पूछिए. What is the question? कहा कि आरएसएस के कई नेताओं ने कई बार अपने बयानों में, बड़े से बड़े नेताओं ने कहा कि वो आरक्षण को समाप्त करेंगे इस देश में. आप आरएसएस की विचारधारा पे आपकी पार्टी चलती है, भारतीय जनता पार्टी, आप उन बयानों से सहमत है कि असहमत? Pradeep just clarified that the Sar Sanchalak, the head of the RSS, has clarified that they have no problems with the reservation. They have no problem with quota. And by the way, many in the MBA, including the Maharashtra state chief, has echoed what Rahul Gandhi said in the US, that yes, we will finish reservation, हम खत्म कर देंगे, एक समय आएगा. I want to ask you on constitution. Now answer one question. You've been. आपकी बात कर रहा हूं. आप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, गजब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं. चलिए ठीक है, अब मैं पर्दा उठाता हूं और संविधान की बात करता हूं. एक सवाल पूछे, मैं पूछ रहा हूं, संविधान में यूसीसी का बात है, आप सपोर्ट करते हैं यूसीसी को?
यूसीसी की बात है संविधान में, जिस आर्टिकल में आपको पूरा वो पढ़ना चाहिए वो ये है कि जब तक पूरा एक मैंडेट बन नहीं जाता, एक आम पूरे देश के समस्त नागरिक उस पर जब एग्री करते हैं तो इस बारे में सोचा जा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि यूसीसी हर हाल में लागू की जाएगी। ये लिखा है कि अगर पूरा देश इस प्लेटफॉर्म पे आता है, एक सामूहिक विचारधा, एक जनरल कंसेंसस बनता है कि यूसीसी को देश में लाया जाए, तब यूसीसी लागू होगा। तो प्लीज डोंट प्ले विद संविधान बहुत सेंसिटिव मैटर है। आप बोलिए आई वेलकम। आप संविधान के विरोधी हैं, स्टैंड बाय योर स्टैंड। आप संविधान के विरोधी, आप बाबा Rashidi, 1 minute. मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। If I say one more thing, what Baba Saheb Ambedkar said about Muslims, you will leave the show. I don't want to go there. Let me stick to UCC. I just want you to say that yes, I welcome, no 1 minute. I want you to take a position on UCC. आप बस इतना बोलिए कि UCC के बारे में जो संविधान में लिखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप बोलिए UCC पे विचार होना चाहिए। आप बोलिए UCC पे विचार होना चाहिए। आप संविधान की बात कर रहे थे, आप बोलिए। वो जो लोहिया की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, Mr. Lohia also supported UCC, but the present day समाजवादी पार्टी has problems with the UCC. IP Singh जी, सवाल ये भी है। Kamru Zaman Chaudhary, let me ask you the larger question. We began by quoting the Samajwadi Party leader who's called Mahakumbh a scam, but this is only a pattern. प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोल दिया, कुंभ को करप्शन बोल दिया। मिस्टर खड़गे बोल रहे हैं कि साधुज इन गेरुआ स्प्रेड हेट। What is this? Is this constitutional, sir? No, Pranesh, don't try to misunderstand the statements that are coming from our leaders. Okay. Basically, what we wanted to put out in the public domain is that all these things have been carrying on since even BJP, RSS were even born in this world. Even when they could not start spreading their hate in the society, Mahakumbh was going on. We all respect what is Mahakumbh about. Don't try to dog whistle us. Point out here is, in the name of Mahakumbh, in the name of Ram Mandir, thousands of crores have been siphoned off by the organizers. No, we all know who are the saying organizers. This? 20 party officers has come out in every district of the country. Which court has said this? Why not an investigation? Kamru Zaman Chaudhary, which court has said this? Which court has said this? Investigation क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए which court has said this? Investigation क्यों नहीं हो रहा है? जो राम मंदिर का स्कैम हुआ था, so you're jumping the gun. Even before the investigation, you will say these things. Will you Kamru Zaman Chaudhary, आज आपने पूरी तैयारी की है, आज आप सब पढ़ के, by the way, the first, पहले जो आपने 4 लाइन सुनाया, उसका राइम स्कीम ठीक नहीं था, तो आप उसको पहले ठीक कीजिए. We did not have the impact as desired. Now, let me ask you, will you say the same thing about the land loot by the Waqf in the name of religion? Wait, this cannot be a comparison between what's happening with the temple boards or the Kumbh Mela Trust and the Waqf or anything, because these are two different, absolutely different things. Why do you have a problem every time Waqf comes up? Waqf के तो shield कर देते हैं आप लोग, क्यों? Because generally you are spreading a misinformation in the country that Waqf board is there to take away the Hindus' property. That's not the fact. Not just Hindus, even Muslim properties. For the courts of law, even Muslim properties. That way, Waqf, the land grab of the Waqf is secular. No, वो है, वो that you have to give it to them. उन्होंने हिंदू की प्रॉपर्टी ले ली, क्रिश्चियन ले ली, मुस्लिम ले ली. Ordinary Muslims are suffering. Do you know who manages the Waqf board? I know who manages the Waqf. No, do you know where the temple money goes? Tell the public. Do you know where the temple money goes? That is managing Kamru the Waqf Zaman board. Chaudhary, do you know where the temple money goes? State. No. The state takes the money. When the state spends a tiny amount, you have a problem. Sanjay Gupta, सोना अगर मोनेटाइज कर दे तो पूरा देश का कर्जा माफ हो जाएगा. ये अब मंदिरों के अंदर लोग इनकी नियत देखिए. अब ये मंदिरों के अंदर जो डिवोटी सोना देते हैं उसको छीनना चाह रही है. Kamru Zaman Chaudhary and Congress party has exposed their real intention. This is why I say they want to convert this country into an Islamic country. मंदिरों में जो डिवोटी सोना दे रहे हैं, इन्होंने क्या बोला आपके शो पे? इन्होंने बोला वो सोना को गरीबों में बांट दे. He has to apologize. How dare you?
हाउ डेयर यू कमरू? आईपी सिंह, डू यू एंडोर्स दिस? एक एंकर और बिठा लिया आपने अपनी शो में। अरे ऐसा मत बोलिए आईपी सिंह जी, दोस्त है अब आप। एंकर और बिठा लिया आपने, ऐसा मत बोलिए, मैं ही पूछ रहा हूं आपसे। प्रवक्ता के जगह एंकर की भाषा सुनाई पड़ रही है। कोई बात नहीं, अब आप एंकर को प्रवक्ता बोलते हैं, प्रवक्ता को एंकर बोल रहे हैं। मन बना लीजिए कौन क्या है। आईपी सिंह जी सवाल। आईपी जी कम से कम एक टिकट ब्लैकमेलर नहीं बैठा है। ओके, 1 मिनट, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। 1 मिनट, ऑल फेडर्स डाउन प्लीज। प्रदीप, 1 मिनट, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। 1 मिनट। आईपी सिंह जी एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। अभी कमरुज़मान कह रहे हैं कि टेंपल में जो सोना है, मंदिरों की जो संपत्ति है, उसको लोगों में बांट देनी चाहिए। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ये मंदिरों की, ये आप इसका समर्थन कर रहे हैं? बस हम ये जानते हैं कि जो बड़े बड़े बीजेपी के ठेकेदार हैं, जिन पर मुख्यमंत्रियों और बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, वो हेलीकॉप्टर और जहाज खरीद के ला रहे हैं। क्या ईडी उनसे कभी पूछताछ करने जा रही है? उनसे पूछताछ कब होगी? कि आखिर लेके जब महाराष्ट्र आते साइकिल चला के जाते हैं क्या आईपी जी? 8 साल की उत्तर प्रदेश सरकार और एक चीज बताइए, क्या हो गई बात? आईपी जी जब लखनऊ से अखिलेश यादव महाराष्ट्र में मुंबई में आते हैं तो साइकिल चला के जाते हैं कि जहाज से जाते हैं? नहीं, कहां से कैसे साइकिल चला के जाते हैं? लखनऊ से मुंबई की जहाज से जाते हैं? साइकिल चलाते हैं तो मैंने नहीं देखा मुंबई से। ठेकेदारों के बारे में बताओ। अरे बताओ ना, बड़ी सूची है, आप बताइए। अखिलेश यादव जी जहाज में नहीं बैठते, साइकिल चला के जाते हैं। मैंने तो नहीं देखा उनकी साइकिल की फोटो। ओके, फेडर्स डाउन। 1 मिनट। आईपी सिंह जी आपसे मैंने सवाल पूछा, वो कमरुज़मान कह रहे हैं कि मंदिरों का सोना जो है लोगों में बांट देना चाहिए। संजय गुप्ता जी देखिए, ये है आपके अलायंस पार्टनर, आप कुछ भी कहते रहिए, ये इंसल्ट करना नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमने इनकी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि बाला साहब हमेशा सही बात को ही बोलते थे। और मंदिरों पर जिस तरह से ये बात कर रहे हैं सोने की, और जिस तरह हमारे देश के अंदर मंदिरों का संचालन वहां की ट्रस्टी करती है, वहां के लोग ही करते हैं। क्या वहां पे हो क्या ना हो, ये छूट हमारी सरकार की तरफ से ये है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप किसी भी साथी की तरफ से नहीं आने चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आने चाहिए। सरकार को, सरकार के खिलाफ इस तरह की डिमांड में किसकी ये कोई डिमांड है? मतलब ये तो एक बेवकूफाना बातें हैं। मतलब किसी भी तरह की ऐसी बेवकूफाना बात का हम समर्थन नहीं करते। तो आप किसी भी चीज हमारे देश के अंदर जब कानून है, हमारे देश के अंदर जब संविधान है। एक बात संजय गुप्ता, अगर आपको हर चीज से प्रॉब्लम है, सावरकर पे आपकी नहीं बनती, सनातन पे नहीं बन रही है, सोने पे नहीं बन रही, तो आप वहां कर क्या रहे हैं? इधर आ जाइए, एमबीए को छोड़ दीजिए। आप प्रदीप भंडारी बोल रहे हैं कि आप तैयार हैं बीजेपी के साथ जाने के लिए। वो तो देखिए, इस पे उद्धव जी ने कई बार मंथन किया है। ये तो सिर्फ क्योंकि बीजेपी ने उस वक्त 2.5 साल के लिए अगर मुख्यमंत्री दे दिया होता तो ये सब चीजें ना होती। और आज भी बहुत बार इस बात पर मंथन किया जाता है। अच्छा, तो इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ आए, वो ठीक है, वो सकारात्मक रूप से बात नहीं जा पाई। ठीक है, इलेक्शन के बाद सोचेंगे। इलेक्शन के बाद हो तो, क्योंकि देखिए एक बात मैं और कहना रिश्ते पे बोलना चाहता हूं मैं। हाँ, रिश्ते पे अब मेरे को कुछ आ गया बोलने के लिए। मैं क्या बोलूं, रिश्तों पर, रिश्ते पे बोल रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे पुराने साथी जो होते हैं उनके साथ अब हम जब चलते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। मगर फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कोई मुद्दा एक ऐसा आता है कि जिसको समझने समझाने में हम विफल हो जाते हैं और पुराने और गहरे रिश्ते टूट जाते हैं। फिर एक नया साथी आता है, वो कहता है कि मैं हूं ना, तो फिर दिल ये कहता है कि कोई बात नहीं, अब तू नहीं तो कोई और सही। मगर फिर जब नए साथी के साथ चलते हैं तो चलने के बाद फिर कुछ दिनों में एहसास होता है कि जो बात तुझमें थी वो इनमें नहीं। तो इसी पर एक शायरी कर रहा हूं। कहोगे तो। थैंक यू कमरुज़मान जी, आईपी सिंह जी, ताला रशीदी, संजय गुप्ता, प्रदीप भंडारी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द न्यूज।